सुरक्षा के नियमों का करो सम्मान, न होगी दुर्घटना, न कभी आप होंगे परेशान। दोस्तों, आज हम बेहद ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं और वो विषय है आपकी सुरक्षा का। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि छोटी छोटी गलतियों के कारण बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, इसलिए आपका सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है। चलिए, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग प्रेजेंट्स IBC 24 सड़क सुरक्षा मुहिम। सड़क सुरक्षा मुहिम के सफर को आगे बढ़ाते हुए आज IBC 24 की टीम पहुंची है BIT कॉलेज रायपुर में। अपने प्रोग्राम की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले सरस्वती वंदना। सर, मैं चाहूंगी कि आप प्लीज। हो हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, मान दे सम्मान दे माँ, मान दे सम्मान दे माँ, शारदे सद्ज्ञान दे माँ, हो वीणा धारिणी, हो हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, हो हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी। तो मां सरस्वती के आशीर्वाद से हम अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे अतिथि मौजूद हैं, हम उनका फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत करने जा रहे हैं। BIT कॉलेज रायपुर के प्रिंसिपल डॉक्टर पीयूष कांत पांडे जी और साथ ही ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर भूई साहब, और फूलों का गुलदस्ता देकर IBC 24 की टीम उनका स्वागत करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक करके मैं सभी स्टूडेंट्स को बुलाऊंगी जो आज अपनी राय रखेंगे सड़क सुरक्षा पर, वो अपनी बात रखने जा रहे हैं। आइए एक एक करके सभी स्टूडेंट्स को मैं इनवाइट करती हूं। तो चलिए, सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी आशना शेख को। Friends, in today's fast and furious world, sometimes some moments come to our life when we need to slow down to own a better future. And I mean it literally. Because as we all are very well familiar with the superbikes and sports car owned by our youths, death race, road race and rough race which goes on increasing day by day. Let me make you all to recall our very old tortoise and rabbit story and its ever-inspiring moral. Slow and steady wins the race. Yes, by slow driving, by avoiding breaking of signals, by wearing helmets and following all the rules and regulations which are made by our government for our safety, we can win the race. The race of life. At last, I, Ashna Sheikh, conclude my words by saying that by being aware of traffic rules and following them, we can minimize the accidents, and trust me friends, it will help us all in building a better future. 2008 के विश्व संगठन के अनुसार अस्पताल में भर्ती होने वाले जो संख्या है वो ज्यादा से ज्यादा सड़क दुर्घटना से जुड़ी हुई होती हैं, जिन्हें हमें ही मिलकर कम करना है। अगर हम सारी की सारी जिम्मेदारी पुलिस को या ट्रैफिक पुलिस को दे देते हैं तो हमें कानून का पालन करना नामुमकिन हो जाएगा। हमें खुद ही सोचना है कि हम किस तरह से कानून को लेते हैं, किस तरह से हम कानून का पालन करें और क्या हम ऐसा क्या करें कि सड़क दुर्घटना कम हो। इसके लिए हमें खुद भी जागरूक होना है, लोगों को भी जागरूक करना है। कानून हमें भी पता है लेकिन हम पालन नहीं करते, हमें कानूनों का पालन करना है। Today, driving bikes is not just a means of transport or means of communication from one place to other. It has become something like a status symbol, so-called cool dude if you ride bike fast manner, and if you are like, all these things are the perceptions of people are changing regarding this, and and for this the youths do not follow the traffic rules, and there are n number of reasons that I was getting late, and there are many more things. But it's better to be late than never. And carefulness costs you nothing, but carelessness may cost you your life. Now,
basically we are discussing this issue. So issues are not meant to be just discussed. We need to find a solution over it. Humans are almost prone to make mistakes, commit violations. That is why that is particular the thing where the road safety campaigning comes into action. It is a purposeful attempt to persuade and motivate a population and change their view regarding road safety. Traffic awareness is very important in today's life because we complete whole our tasks from morning to evening with the help of means of transportation itself. Transport systems completes our life, so it becomes very necessary to know the rules and regulations which are based on the traffics. We are seeing day by day that so much accidents are happening in our surroundings. These are due to as we all are ignoring the traffic rules and regulations. That's why all these accidents are happening. People jump signals, do not follow the lane disciplines, and speed and overtakes the bikes or cars, whatever. Also, the use of mobile phones while driving also contributes a major cause for the accidents taking place in the society. Road accidents have earned India a DBS. Around 1,30,000 deaths are happened in India just due to the road accidents itself. Road accidents have earned a very major cause. The major cause of road accidents is because of we are unaware about the things going around us, and the use of mobile. Drink and drive is also one of the major causes happening around us. This rapid increase in road accident is also due to the today's generation. The youngster, as they love to ride the bikes, but in the condition that they're driving so fast, this is also one of the cause of accident in today's generation. पब्लिक जो होती है वो भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझती. एक भारत के नागरिक होने के नाते ये नहीं सोचते कि मैं चल रहा हूँ सड़क पे, मैं चल रही हूँ सड़क पे, मेरे अलावा कोई और भी चल रहा है, कोई और भी पैदल चल रहा है, कोई अपनी जिंदगी के साथ खेल के किसी जरूरी काम से जा रहा है, उसके घर में कोई उसका वेट कर रहा होगा. लेकिन ये सब कोई नहीं सोचते और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं. और कुछ लोगों का शौक होता है नियम तोड़ने का, और कुछ लोग जैसे तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं. तो ये सब चीज सिर्फ दोनों तरफ से देखनी पड़ेंगी. कुछ पुलिस वालों को देखना पड़ेगा, कुछ पब्लिक को देखना पड़ेगा. दोनों तरफ से सबको जागरूक होना पड़ेगा और इसको लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा. नियम पालन करने में आधे से ज्यादा आप चूक करते ही हैं. कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो. और जब आप चूक करते हैं तो आप ये नहीं देखते कि आपको आगे क्या हो सकता है, क्या होगा क्या नहीं होगा. आप कभी नहीं देखेंगे. आप सिर्फ ये देखते कि मैं उस पल बच गया, मतलब मैं आगे भी बच जाऊंगा. ऐसा हर बार नहीं होता. और आज अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा दुर्घटना जो होती है वो युवाओं के साथ होती है. अगर आप देखोगे तो युवाओं को, अगर आप युवा हिंदी में हम बोलते हैं, जो कि आज अभी यहाँ जो बैठे पीढ़ी में जो सब युवा हैं, युवा को अगर आप उल्टा करोगे तो उसका होता है वायु. तो आज हर कोई वायु की गति से ही चलना चाहता है. कभी ये कोई नहीं सोचता कि धीमे चलने से भी कुछ हो सकता है. तो अगर सबको वायु की गति से जाना है और अगर हर तरह से वायु आया तो उससे चक्रवात बनता है, जो आपके लिए शायद हानिकारक होता है अगर देखा जाए तो. और यहाँ हर बार आपका सुरक्षाकर्मी हर जगह मौजूद नहीं होते. आपको खुद को उसके नियमों का पालन करना पड़ता है. यहाँ नियम बनाया गया है, ट्रैफिक सिग्नल्स हर जगह लगे रहते हैं, जगह जगह चौक चौराहे में लगा है. आप देखते हैं वहां कोई सुरक्षाकर्मी है या नहीं है, आप निकल लेते हैं. ये सबसे गलत चीज होती है. आप भले उस टाइम निकल गए, लेकिन आप फिर से मैं वही बोलूंगा, अगर उस पल निकल गए, लेकिन आगे हो सकता है कभी कुछ दुर्घटना हो सकती है आपके साथ. ट्रैफिक अवेयरनेस हम सबको पता है, वो बात की बात है. पर मुझे जो एक चीज खाई जाती है वो ये है कि अभी आप न्यूज में देखिएगा कि कहीं भी दुर्घटना होती है, कहीं भी, मतलब चाहे वो रोड में हो, हाईवे में हो, कहीं भी लोग उस व्यक्ति जो दुर्घटना का शिकार हुआ है उसकी मदद करने के बजाय लोग उसका वीडियो बनाते हैं, फिर उसको व्हाट्सएप में शेयर करते हैं. फिर उसके बाद वो आगे बढ़ते वो मीडिया, सोशल मीडिया में ऐसे लोग, मुझे पता समझ नहीं आता, मतलब क्यों ऐसा लोग करते हैं. उस व्यक्ति के आप 2 मिनट रुक के उस वीडियो बनाने के चक्कर में आप 2 मिनट रुक के उस व्यक्ति की मदद कर लीजिए तो उस व्यक्ति की जान बच सकती है. यातायात जागरूकता ये चर्चा का बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आजकल की कंडीशन या फिर आजकल की परिस्थितियों को देखा जाए तो बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही है.
सरकारी सर्वे के अनुसार हमारे भारत में 5 लाख से भी ज्यादा प्रतिवर्ष दुर्घटनाएं हो रही है, जिसमें 1,42,000 लोग प्रतिवर्ष मारे जा रहे हैं। यह यहीं पे समाप्त नहीं होता है। ये जो हमारा चर्चा का विषय है वो यहीं पे समाप्त नहीं होता है। दुर्घटना तो हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, जिसके ऊपर यह बीता है उसके परिवार को बहुत सारे तकलीफें उठानी पड़ती है, वो जिस दर्द से गुजरते हैं। यहाँ पे बादल ने एक बहुत अच्छा टॉपिक रखा कि जब होती है दुर्घटना फिर हम लोग उसका वीडियो बनाने लगते हैं। इंसानियत के नाते हम किसी को हेल्प करने का सोचते हैं, तो हेल्प करने में भी लोग ये सोचते हैं कि यार हम लोग पुलिस मामले में फंस जाएंगे, ये वो दुनिया भर की बातें। बट इसका मेन सॉल्यूशन यही है कि हम उसको तुरंत हेल्प करें, हॉस्पिटल पहुंचाएं, किसी की दुआ लगेगी और उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, उसकी जिंदगी बच जाएगी। आज की चर्चा का विषय जो ये है यातायात जागरूकता, इसका निष्कर्ष यह है कि हम बहुत अवेयर हो अपने सोसाइटी के लिए, खुद के लिए, अपने देश के लिए। The traffic awareness is most important because it's a two-way process. It's not about we are doing a fault. It's because that the peoples who are present here know that if they are not doing anything but they get injured from these incidents. So I would like to share one experience which is happened to my friend. He was just injured by a auto driver's accident. It might be funny, but he faced a 2 months problem for this, and he can't make the drawing for it. So it's not about that ki we should drive in a rash and to reach that target. We should make the awareness for the other peoples also. There are some set of rules which actually require that needs to be followed. We all have been saying that. One of my friend also said that we are in a world living like we have to, rules are meant to be broken. This was the statement. Yeah, this was a statement. This is not what we have to do. I'll say traffic means hurry. Okay, you are late for college. Yeah, I'll just rush and I'll just go over speeding. I'll reach college 5 minutes earlier. What if you don't reach your home? You reach your college or home? There are people staying in a home which wants you alive. See, we are talking about traffic awareness. We talk about, yes, we have to wear helmet. Where? Are you wearing? No. This is a question. We have to raise this question and we have to answer because we have the answer, yaar. Traffic, I'll say this, awareness is not that can be taught to you, yaar. It is a state of mind which actually comes with the social attributes, which you have in yourself. So this is what we need right now. कि as हमको पता है, we know all the rules. We are aware of all the things, but we need to follow them. तो छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग प्रेजेंट्स IBC 24 सड़क सुरक्षा मुहिम में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग प्रस्तुत करता है IBC 24 सड़क सुरक्षा मुहिम। तो आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर भुई साहब को, जो हमारे सफर में हमेशा साथ रहे हैं और बड़े ही सरल और अनोखे अंदाज में वो आपको बताएंगे कि ट्रैफिक रूल्स कैसे फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले किसी यातायात को सुगम और तत्काल तेज रफ्तार बनाए और सुरक्षित बनाने के लिए उसके लिए 3E है। फर्स्ट है E, इंजीनियरिंग। सबसे पहले आते हैं इंजीनियर, आते हैं इंजीनियरिंग, निर्माण। यदि जहां हम निवास करते हैं, जहां रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस देश में जिसमें आवागमन करते हैं, उस देश का सड़क ठीक ठाक हो, सड़क बनाए तो चौक बना हुआ, चौक ठीक ठाक हो, चौक बनाए तो मार्किंग हो, मार्किंग हो तो बाजार है, मार्केट है तो सही पार्किंग हो, मापदंडों के आधार पर सिग्नल्स हो, सभी यातायात ठीक होगा। दूसरा ये होता है एजुकेशन। ई नंबर 2 एजुकेशन, शिक्षा, यातायात शिक्षा। उस देश में रहने वाले, उस समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों की यातायात नियमों की जानकारी हो, यातायात तेज होगा, सुरक्षित होगा। थर्ड ये है इन्फोर्समेंट, प्रवर्तन। एक सर ने बोले थे कि सही ढंग से उसको पालन भी कराना है, उसको मुख्य समस्या है पालन भी कराना है। तीसरा है इन्फोर्समेंट, प्रवर्तन, पालन कराना।
तो ये मेरा पार्ट है, पुलिस का काम है। यदि सड़क भी ठीक ठाक बना दिया आपने यातायात शिक्षा भी दे दिया, फिर भी पालन नहीं करता, तो पुलिस उसको चालानी कार्रवाई करेगी। लेकिन यहां ना सड़क ठीक ठाक बना है, ना यातायात शिक्षा भी है, पुलिस खड़े कर दे, डंडा मारो, आप चालान करो। तो ये इसमें यातायात ठीक ठाक नहीं होता सर, हम लोग को सुधारना है। ये आप ही लोगों से, आप युवा हैं, वायु गति से तेज चल रहे हैं, इसी युवा को पूरा भारत देश अभिमान करता है, आपसे दुनिया है, जो यानी कि हम आपको अभिमान कर रहे हैं, इस अभिमान को बनाए रखें। तो इसमें अभी ताजा ताजा ई नंबर 4 जोड़ दिया हूं, इन्वायरमेंट, कि हमारा जो पेट्रोलियम मंत्रालय का मानना है कि हमारे जो यातायात जाम होने की स्थिति है और सिग्नल पोस्ट में जो वाहन गाड़ी चालू रहती है, उसके लिए तकरीबन 12-15 हजार करोड़ रुपए का पेट्रोल अनावश्यक जला देते हैं। इतना कार्बन जाता होगा, ये आता होगा, हम उसको सांस लेते हैं। तो धीरे धीरे यदि मान लें यातायात को सुगम न करें तो एक प्रकार का डायनासोर टाइप का हम लोग विलुप्त प्राणी हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको जानना जरूरी है। दूसरा है, यातायात नियमों के बारे में मेरे ख्याल से सभी लाइसेंसी होंगे। धारा 1 से लेकर 34 तक जो है टोटल सिग्नल है, सिर्फ 2 ही धारा ऐसे हैं जो सिग्नल से बाहर है, वो ओवरटेक कैसे करना है और नो पार्किंग स्थान क्या है। बाकी 31 धाराएं जो हैं सिग्नल है। ये सिग्नल को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है रोड मार्किंग, सड़क पर मार्किंग पड़े रहते हैं। दूसरा होता है रोड साइन, सड़क के किनारे किनारे विजिबल होते हैं, दृश्य दिखता है। चौथा होता है ड्राइवर साइन, गाड़ी चलाते समय दाएं बाएं मुड़ने के लिए कैसे संकेत करेगा। और चौथा होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, विद्युत संकेत। और 5वां होता है ट्रैफिक पुलिसमैन संकेत। ये पूरे 31 धारा को इसमें समाहित किया गया है। विश्व में जितने भी आवागमन के साधन है, सभी आवागमन के साधन सिग्नल पर हैं। सिग्नल पे ट्रांसपोर्ट फेल। सड़क हवाई यातायात का देखेंगे, हवाई जहाज का सिग्नल मैन एक होता है, क्या बोलते हैं सर, ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। वो कंट्रोल रूम में बैठा रहता है। साधारण भाषा में बोला जाए उसको तो अपने जिम्मेदारी पर रनवे पर एक समय पर एक ही हवाई जहाज को लैंड कराता है, एक ही समय पर एक हवाई जहाज को टेकअप कराता है। रेलगाड़ी का भी सिग्नल मैन देखे होंगे, वो भी जब सिग्नल करता है रेल पटरी में एक ही रेलगाड़ी आता है। लेकिन सड़क का सिग्नल मैन में मेरे साथी हैं, यदि वो सिग्नल करता है तो किसी एक गाड़ी को सिग्नल नहीं करता, एक साथ सैकड़ों संख्या गाड़ी को सिग्नल करता है और सिग्नल पालन करने का भार टोटल वाहन चालक के ऊपर सौंपता है। कि अपने जवाबदारी उतना नहीं लेता है, लेकिन उतना नहीं लेता, लेकिन उस समय आप पालन नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। तो ये संकेत क्या होते हैं जो सड़क पर बने हैं, चाहे रोड मार्किंग हो, चाहे रोड साइन हो। एक सोया हुआ पुलिस वाला है, इस पुलिस वाला सो गया है, सो के बता रहा है आपको। आप चाहो तो मानो, ना चाहो तो ना मानो। सबसे मार्किंग, जेब्रा क्रॉसिंग, मार्किंग नंबर 1 सब जानते हैं। पैदल पार पथ, यदि एक दिशा से दूसरी दिशा जाएंगे तो पैदल जाएंगे। हमारे साथी ने एक बड़े अच्छे से कविता पढ़े कि पहले दाहिने देख, पहले बाएं देख। यही है कि भारत देश की किसी भी सड़क पर जाए, उनको मैं परिभाषा यानी कि विस्तार से बता दे रहा हूं। भारत देश के किसी भी सड़क पर जाइए, सबसे पहले दाहिने देखिए। दाहिने देखने का मतलब यह है कि आपको पहले गाड़ी आते हुए दाहिने तरफ से दिखेगा, माने उस सड़क पर चलने वाले वाहन का राइट साइड आपका दाहिने तरफ होगा, इसीलिए सबसे पहले दाहिने देखिए। यदि जहां जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, सड़क पास करना है तो दाहिने देखिए, फिर बाएं देखिए। आधा सड़क को दाहिने देखते हुए, आधा सड़क को बाएं देखते हुए पास करें, सुरक्षित रहेंगे। जेब्रा क्रॉसिंग के जस्ट पीछे, आप पैदल नहीं है, वाहन पर चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, पुलिस वाला रोक दिया है, जेब्रा क्रॉसिंग के जस्ट पीछे एक लाइन होती है, 2 लाइन भी हो सकता है, स्टॉप लाइन, वहां रोकना है। सड़क के यातायात को विनियोजित करने के लिए, डिवाइड करने के लिए सड़क के बीचों बीच एक डिवाइडर बना देते हैं। यह रायपुर शहर के अंदर, शहरों के अंदर होता है। लेकिन आप अब यहां से आपके एकेडमी से जाएंगे, रायपुर तरफ जाएंगे तो वहां डिवाइडर नहीं बना है, तो वहां भी तो कुछ चलने का नियम होगा। देखिए यहां से जगदलपुर जाएंगे, डिवाइडर नहीं बना है, तो उस स्थान पर जहां डिवाइडर बना है, जैसे डिवाइडर को जंप नहीं कर सकते, सड़क के बीचों बीच एक कंटिन्यू लाइन बना रहता है, लगातार लाइन बना रहता है, सफेद कलर में या तो व्हाइट कलर में, इसका नाम होता है सेंट्रल लाइन। जिस प्रकार को आप डिवाइडर को पार नहीं कर सकते, किसी भी कंडीशन पर आप इस लाइन को जंप नहीं करना है। धन्यवाद सर, आप सभी को, सबको थैंक यू। चलिए, मैं उम्मीद करती हूं कि भुई साहब का सेशन आपको काफी मजेदार लगा होगा। और आइए अब बीआईटी कॉलेज रायपुर के प्रिंसिपल डॉक्टर पीयूष कांत पांडे जी को मैं बुलाती हूं मंच पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम रियली वेरी थैंकफुल
to IBC because they approached me that they wanted to have this program. तो मुझे बहुत खुशी है कि मैंने एक ऐसे कार्यक्रम को इसकी स्वीकृति दी। मैं बैठे बैठे सोच रहा था, ये वर्ड है नियम, बहुत बार बार नियम नियम वर्ड आ रहा था, तो मैंने बैठे बैठे उसका संधि विच्छेद कर दिया। नी यम, यम माने यमराज, मृत्यु के देवता यमराज, और नी माने रोकना उसको। तो नियम का मतलब क्या हुआ? मतलब मैं अपने ज्ञान यही मैंने अभी पाया, मैंने सोच के नहीं बैठा था, मैं यही बैठ के मैंने सोचा कि वास्तव में ये शब्द कितना महत्वपूर्ण है। यम से बचाना अपने आप को ही नियम है, और नियम का पालन करना इसलिए हमारा धर्म हो जाता है, कर्तव्य हो जाता है, यदि आप अपनी जान को खोना नहीं चाहते। तो वही जी जैसे कहा कि हम परोपकार की भावना, तो ठीक है, परोपकार की बात तो ही, परोपकार से पहले तो स्वउपकार करें कि अपने आप से यम को दूर रखें, मृत्यु को दूर रखें, क्योंकि हम सभी की जिंदगी ईश्वर का हमको जन्म मिला है, मनुष्य का जीवन है, ये बहुत महत्वपूर्ण जीवन है। 31 रूल जो साहब ने बताए, वही साहब ने, उनका सही पालन हम करेंगे, तभी हमारे इस प्रोग्राम की और आईबीसी जो हमारे बीच आई, इन्हें मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, और आशा है कि भविष्य में भी हमारा इंटरेक्शन इस प्रकार होता रहेगा और आप भी बढ़ चढ़कर इनमें हिस्सा लेते रहेंगे, और भोई साहब जैसे लोगों को और भी हमारे बीच में हम उपस्थित पाएंगे और इन मामलों पे हम और डिस्कशन कर सकेंगे। धन्यवाद। चलिए, इंतजार खत्म हुआ और अब बारी आती है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की। देख लेते हैं कौन कौन है विनर्स। और फर्स्ट प्राइज किसको जाना चाहिए? एनी गेस? प्रांशु बघेल। प्रिंसिपल सर ने बताया है कि आप रायपुर शहर के चौकों पर एनालिसिस समीक्षा करेंगे, तो जरूर करें, और हम मुझे व्हाट्सएप करें 9479191234 9479191234 94,791,91,234। ये ट्रैफिक पुलिस का व्हाट्सएप है। तो इसमें आपको कोई आइडिया आता है, आपको कोई समस्या है, कोई सुझाव है, तो इसमें जरूर करें। और मेरा भी फेसबुक है रायपुर ट्रैफिक पुलिस, उसको भी लाइक करके आप शेयर कर सकते हैं। और आखिर में हर बार की तरह ओथ लेना हम कैसे भूल सकते हैं? मैं सड़क का प्रयोग करते समय यातायात नियमों का पालन करूंगा। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड को हमेशा रास्ता दूंगा। सड़क पर घायल पड़े व्यक्ति को यथासंभव मदद करूंगा। धन्यवाद। तो देखा आपने, आज हमारी आईबीसी 24 की टीम किस तरह से बीआईटी कॉलेज रायपुर पहुंची और हमने जाना कि ट्रैफिक रूल्स हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए आईबीसी 24। नमस्कार।